Hello everyone. I hope you guys are doing well and you are in best of your spirits. So the topic for today is economic curves. And yes, we have covered the topics on string puppets, shadow puppets and sources of Indian constitution. So you can have a look at them as well because we are trying to use the same thing, that is the sense of visualization with different memory techniques. In every topic, we are making different codes. We are relating them to something that we can visualize. We can create a picture. Plus, we are using some different techniques. Okay, so you can have a look at them as well. And see, economic curves. We have covered topics from art and culture, from polity. But now let's think or read something about economy. And economic curves is one of the topic that troubles us a lot, and it's very important from exam point of view as well. So let's see how we can simplify it and learn it in just one reading with the sense of visualization, right? The first one is angle curve. Now, angle, how can we visualize angle? No, we cannot see this angle. So, I can transform it into something that I can see. So, I cannot see angle, but I can very well see angel. So, the code I'll make for this is angel because angel I can see. I'm sorry, I can write it little here so that it's easy to see, easy to read. Right, so it is angel. Now, we'll relate the topic, we'll relate the points with this angel because we can visualize angel. We can close our eyes and imagine an angel in front of us with very beautiful wings, right? So now it displays how household expenditure on a particular good or service varies with change in household income. Basically, it tells us the relationship between household expenditure and household income, or we can say between the demand for a good and the income level. So now how we'll relate these points with angle curve or with angel. सी एंजल कम्स, एक सुंदर सी परी आती है और वो कहती है, लो आपको जितना खर्चा करना है करो, मैं आपको खूब पैसे का भंडार देती हूँ. सो बहुत सारे पैसे देती हूँ. सो इनकम, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो, मैं आपके लिए विश करती हूँ या आपको मैं ब्लेसिंग देती हूँ कि आपके पास बहुत पैसा हो. तो जितना पैसा होगा उतना ही आप एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, उतना ही आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद पाएंगे. सो household income and household expenditure. Now whenever you will hear about angle, you will relate it with angel. And angel ने क्या करा था, आपको पैसे दिए थे, पैसों से आपने क्या करा था, शॉपिंग की थी, ड्रेसेस खरीदी थी. So household income and household expenditure. Fine. The next one is Kuznets curve. Can we imagine or can we see Kuznets? No, because it is something that we have never seen and we cannot see. Now let's transform it into something that we can see. So though we cannot see Kuznets, but we can see nets. We can see nets. In nets, fish get trapped, or we can see nest. So I'll prefer nest. It's up to you. You can make your own codes, but let's relate it with nest. Okay. So Kuznets. So nets or nest. So Kuznets curve is nest for me. Now, who builds nest? Nest is built by birds. So now in how do we relate Kuznets with nest and birds? That is, Kuznets curve, it shows the relationship between economic growth and inequality. Now just imagine कि घोंसला है, एक nest है. Nets, so nest, एक घोंसला है जिसमें चिड़िया रहती हैं, तो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं. सो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो आप पॉपुलेशन की जगह इकोनॉमिक इमेजिन कर सकते हैं. बेसिकली वी हैव टू जस्ट गेट अ हिंट ऑफ ग्रोथ. सो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, तो ग्रोथ हो रही है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड अब चिड़िया के लिए उसके सारे बच्चे बराबर हैं, सो वो इनइक्वालिटी नहीं कर सकती, सब इक्वल हैं. तो it is a relationship between growth and inequality. Like this we have related. Now it is inverted U-shaped, very important point. So inverted U-shaped like this. So we can imagine that चिड़िया ने क्या करा, अपना नेस्ट ऐसे बनाने की जगह उसने अपना नेस्ट ऐसे बनाया. Like this is the ground or this is the tree, the hole, and here उसने अपना नेस्ट को ऐसे कवर करा. So it is inverted U-shaped, right? Kuznets, so nest birds बनाती हैं. उसने क्या करा, बहुत सारे बच्चे थे छोटे छोटे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक कवरिंग दी नेस्ट में. So Kuznets curve is inverted U-shaped and it is the relationship between growth, economic growth and inequality because चिड़िया के सारे बच्चे उसके लिए equal हैं. Moving to the next one is Laffer curve. Laffer, though we cannot see Laffer, but we can see a laughing man or laughing Buddha.
सो जस्ट इमेजिन अ मैन इज लाफिंग. व्हाई ही इज लाफिंग? बिकॉज ही इज हैप्पी. वो कह रहा है अरे मेरा तो टैक्स माफ हो गया, सरकार ने टैक्स रेट जो टैक्स दर है वो कम कर दी है. सो ही इज वेरी हैप्पी एंड ही इज लाफिंग. हा हा हा, बहुत जोर जोर से हंस रहा है. तो क्यों हंस रहा है? बिकॉज उसको अब कम टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स रेट कम हो गया. सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू. सो टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू. Then is Phillips curve. Phillips से flip I can say that. Okay, Phillips so flip क्या होती है? जो चीज चेंज होती रहती है, जो बदलती रहती है. तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो बदलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा. महंगाई कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है. एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐसी चीज है, आज नौकरी है कल नहीं है, प्राइवेट वालों को नहीं पता चलता. या फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, फॉर एनी फील्ड वी कैन से, नौकरी आ जाए, हो सकता है कल ना हो. अब लॉकडाउन था, कोरोना था, कितने लोगों की नौकरी गई. जो लेबर क्लास है, जो माइग्रेटरी वर्कर्स थे, माइग्रेंट्स थे, बहुत सबका ये नुकसान हुआ, जिनकी जॉब्स चली गई. सो देर इज अ फ्लिप. सो फिलिप्स से फ्लिप किस में होता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सो इट इज द रिलेशनशिप और इट स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अब इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स. तो आप कैसे याद रखोगे फ्लिप? इन्फ्लेशन क्या है? जब कम, इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है? महंगाई कब ज्यादा होती है? जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो जब सप्लाई कम होता है तो रेट बढ़ जाते हैं, चीजें महंगी हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ गया. अब जब डिमांड ज्यादा है, सी आई शो यू हियर, डिमांड फॉर अ गुड इज राइजिंग. डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा? वी नीड मोर वर्कर्स टू वर्क, ताकि हम डिमांड फुलफिल कर पाए. तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा होगा, बिकॉज हम ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे ताकि हम डिमांड को, जो डिमांड गोल है वो मीट कर पाए. तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो जाएगा. नाउ अब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई तो उतना ही है. अभी सप्लाई बढ़ाने के लिए हमने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया. लेकिन अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उस टाइम कम है तो हम पैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा. पैसे बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. सो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दे आर इनवर्सली रिलेटेड. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. सो फिलिप्स मतलब फ्लिप क्या होता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स. एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. फाइन. नाउ लॉरेंज, ऑरेंज. सो ऑरेंज. अब हम ऑरेंज तो देख सकते हैं, जब भी आप ऑरेंज खाओगे आपको लॉरेंज कर्व याद आएगा. सो ऑरेंज. अब ऑरेंज क्या है? फ्रूट्स तो महंगे भी होते हैं, तो गरीब आदमी नहीं खा पाता, उसको होता है भाई रोटी ही मिल जाए, पानी मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए. तो ऑरेंज से आपको क्या याद आएगा? इनइक्वालिटी, बिकॉज सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. एंड नाउ इफ यू रिमेंबर, इनइक्वालिटी हमने कहाँ याद करा है? कुजनेट्स कर्व में, बिकॉज नेस्ट चिड़िया के सारे बच्चे उसके लिए बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इट वॉज ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी. देखो ऐसे आप एक चीज से दूसरी चीज रिवाइज कर सकते हो. आप सो रहे हो, बेड पे लेटे हो, आंखें बंद करिए, सोने से पहले आप 1 मिनट में टॉपिक रिवाइज कर सकते हो. राइट. नाउ कमिंग बैक टू लॉरेंज कर्व. ऑरेंज. सो ऑरेंज से, क्योंकि सब लोगों को इक्वल और सब लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते सब लोग ऑरेंज खरीदने के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए, क्योंकि महंगे होते हैं. सो इनइक्वालिटी. सो इट शोज income inequality or wealth inequality. That means it is the relationship or the graph plots percentiles of the population and income. ठीक है. And the last one is Gini coefficient. Gini से मैं क्या बना सकती हूँ? ग्रीन टी. राइट. ग्रीन टी. Now आप इमेजिन करो ग्रीन टी का डब्बा रखा है. अब आप तो ले सेम अगेन, इट इज अ मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस अ पॉपुलेशन. दैट मीन्स ये भी क्या दिखाता है? मोर और लेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ऑरेंज, ग्रीन टी, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम लोग खरीद सकते हैं या फिर कोई एक अच्छा बंदा खरीद सकता है. लेकिन जो गरीब है बेचारा, वो क्या करता है? वो सिर्फ रोटी और पानी, वो कहता है मुझे खाना मिल जाए भरपेट, वही मेरे लिए काफी है. सो जहां पे आपका ऑरेंज आ रहा है, जहां पे ग्रीन टी आ रहा है, वहां पे क्या है? इनइक्वालिटी. I hope you got the point. If you have any doubt, you can ask your doubt in the comment section. Now, let's try questions. So, MCQ अगर हम देखें तो first question is, which of the following curve gives a relation between tax rate and tax revenue? Now, do not see the options. आप खुद सोचो. Tax rate, बंदा हंस रहा था, बहुत खुश था, he was laughing. So, the answer is Laffer curve. Laffer curve means it is B option. Lawrence, orange क्या था? Income inequality, तो tax rate से related नहीं था. Kuznets,
नेस्ट भी था तो ग्रोथ और इनइक्वालिटी थी, एंड फिलिप्स फ्लिप हो रहा था तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट था. तो you can pause the video and solve the questions also yourself. So the answer is Laffer curve. The next question is, which of the following statement or statements is or are correct with respect to Phillips curve? Phillips क्या था? फ्लिप हो रहा था. ऑप्शन देखे भी नहीं आपको पता, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये क्या था? इन्वर्टेड कर्व था, सॉरी इनवर्स कर्व था, राइट. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है. इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड, नो इट वाज नॉट यू शेप्ड. यू शेप्ड कौन सा था? नेस्ट वाला, कुज़नेट्स कर्व, बिकॉज बर्ड ने क्या करा था? अपने नेस्ट के ऊपर एक कवर डाला हुआ था टू प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन, राइट. Then the curve suggests that lower the inflation, higher the unemployment, and higher the inflation, lower the unemployment. बिल्कुल ठीक था, हमने बताया था कि एक inverse relationship है. So answer is 1 and 3. So C option. I hope you enjoyed the session. Please continue watching. I'll be coming with more awesome videos. You can also text me in the comment section the topic you want me to help you learn. So see you guys with some awesome videos. And yes, do not forget to watch videos on string puppet, shadow puppet, and sources of Indian Constitution. So you see you guys soon. Till then, enjoy. Take care.